Uh, each and every particular exam has got its own pulse, isn't it? You have to understand the pulse of that examination. And you may not be knowing that I have cracked very many examinations. In fact, I have left 10 government departments. I worked in CPWD, I worked in Central Excise and Customs, in Indian Railways, I was there in CAG, I did not join RBI, I was selected in NABARD, I did not join there, I was selected in PO, Provisional Officers, I did not join. I also got selected in Preventive Officer, Coaching Doc, I did not join. So I have cracked multiple exams, and I'm 2009 batch UPSC selected candidate. And how to crack UPSC, this is something that I'm going to share with you people all. Right? Now see, UPSC is an examination which is to be understood first. Right? It is to be understood properly so that we can take certain steps so that we can crack this particular examinations. The first thing about UPSC is that you have to understand the exam pattern, isn't it? The entire syllabus, the kind of examination, what kind of study materials we should study, how we should approach the examination. All these things you have to understand properly. I hope you people know most of the things, right? But still I'll share certain things with you. In UPSC, distribution of marks, you have got 275 marks for your interview, and then 1750 for your mains, and then your prelims, right? Prelims, there are two papers, CSAT 1, CSAT 2, or GS 1 and CSAT whatever you call. GS 1, of course, you have to be very good at, because your marks will be counted, and CSAT paper is just qualifying in nature, so you have to just qualify this exam, right? Now let us start from the back, from the interview to mains, and then your prelims. You know what, in interview or personality test we call it, here in personality test there are certain qualities which are looked into, what we technically call officer like quality. Certain qualities will be there which they are going to try understand. Should I speak in Hindi? It's fine ना? Okay. फिर भी बीच बीच में हिंदी में बोलूँगा, अगर बांग्ला भी चाहिए तो थोड़ा बहुत बांग्ला भी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है? तो चलो, जो आपका जो प्रीलिम्स इंटरव्यू जो है, उसमें जैसे मैंने बताया कि 275 मार्क्स का है, और उसमें आपको ठीक से जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है उसको एग्जिबिट करना है, उसको डिस्प्ले करना है जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं उनके सामने, सो दैट वो लोग समझ जाएं कि भाई आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं और आपको वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है? मेरे साथ जो हुआ था यूपीएससी में वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे खुद ही। यूपीएससी हॉल में आपको पता ही है कि जो ओरिजिनल यूपीएससी जो इंटरव्यू जहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है, उसमें इसका आधा होगा, आधा भी नहीं होगा शायद, इतना बड़ा रूम होगा एक एक पैनल का। टोटल 8 पैनल थे उस समय, हर पैनल में एक चेयरमैन और 2 4, कुल मिला के 5 लोग बैठते हैं एक बोर्ड में। तो जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन सुबह मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में था, तो जब मैं गया वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा हॉल रूम है, राउंड टेबल है, वहाँ पे बिठा दिया 8 बोर्ड। तो कुल मिला के आई थिंक फर्स्ट हाफ में 5 एक बोर्ड में, मतलब एक पैनल में 5 और सेकंड हाफ में 5, तो हम 5 लोग एक पर्टिकुलर राउंड टेबल में बैठ गए। ऐसे ही सेकंड थर्ड फोर्थ करके टोटल 8 पैनल। उस समय पता नहीं चलता है कि आप किस पर्टिकुलर बोर्ड में जाएंगे, वो बताते नहीं हैं। हम बैठ गए, और आपको पता ही है कि उस समय क्या माइंडसेट होता है कि जैसे पता नहीं अंदर जाते ही 3rd डिग्री अप्लाई होगा हमारे साथ, और थोड़ी देर बाद वहीं पे है, मतलब चाय अगर आप पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं है, चाय बिस्किट वगैरह वो सब प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, वहाँ जाके बैठे, थोड़ी देर बाद एक वहाँ पे एक पीएन है जो सर्टिफिकेट्स वगैरह चेक करते हैं, उसे चेक करने के बाद उन लोगों ने बता दिया कि ऐसे ऐसे बात है, आपको इस पर्टिकुलर बोर्ड में जाना है।
तो हम लोगों ने क्या किया था, टोटल 8 लोग थे, मतलब 8 बोर्ड्स। हर बोर्ड के जो चेयरमैन है उनके बारे में पहले से ही नॉलेज लेके गए थे कि जैसे इस बोर्ड में मिस्टर एक्स है, तो मिस्टर एक्स किस टाइप का इंसान है, वो अपने टाइम में जहाँ पे काम कर चुके हैं कैसे थे, वो क्या पसंद है क्या नापसंद है, ये सब पहले से ही पता करके गए थे। एक कहावत नहीं है कि जिस भगवान को जिस फूल से पूजा करना चाहिए वही फूल अप्लाई करना चाहिए, कुछ ऐसा ही सब लोगों के बारे में पता कर लिया। फिर हमें बताया गया कि आपका जो बोर्ड है वो निर्भय शर्मा, आर्मी, रिटायर्ड आर्मी जनरल, उस बोर्ड में जाना है। तो मैंने बाकी 7 बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था उसको डिलीट कर दिया। मैंने बोला भाई आप इस पर फोकस करो, इसी बोर्ड में जाना है। तो हम बैठे रहे, फर्स्ट कैंडिडेट चला गया, सेकंड कैंडिडेट चला गया, मैं थर्ड में था। तो जैसे ही मेरा टर्न आया तो पीएन जो है वो मुझे लेके गया, तो सर चलिए अभी आपका टर्न आने वाला है और सेकंड का जो है ना उसका ख़त्म होगा, आप अंदर जाएंगे। तो पीएन ले जाके उसी रूम के बाहर एक पीएन का एक कुर्सी है, उसी कुर्सी में बिठा दिया, मतलब आईएएस बनने से पहले पीएन बनवा, उसी कुर्सी में बिठा दिया, आप बैठिए, बाहर निकलेगा फिर आप जाना। तो चलो, उस समय तो माइंड सेट इतना ख़राब रहता है कि भाई छोड़ दो, आईएएस बाईएस भाड़ में जाए, मुझे घर जाने दो, कुछ ऐसा माइंड सेट बनता है। डर लगता है ना, 5 लोग बैठे हैं 60+ और आप अंदर जाएंगे, पता नहीं क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, पता तो है नहीं कुछ, ठीक है। तो क्या हुआ कि फिर वो कैंडिडेट बाहर गया, तो बाहर गया, मैंने देखा उसका शक्ल की तरफ एकदम डरा हुआ था, मतलब बहुत ख़राब गया होगा इसका उसका इंटरव्यू। फिर मेरा टर्न आया, कॉलिंग बेल बजा, मैं अंदर गया। इस फ़ैन को ऑफ़ कर दें क्या? मुझे लगता है लास्ट में एक बार जरा देखें, बोल दो अगर कोई है तो। कहाँ से ऑफ होता है? फिर आप लोग नहीं सुन पाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ अब ठीक है। हाँ। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही मैंने एंट्री किया, वो 5 लोग बैठे, निर्भय शर्मा बीच में, 2 4, बोला मिस्टर सुशांत स्टॉप देयर, आई हैव गॉट ए क्वेश्चन फॉर यू। मुझे मतलब बैठने का मौका ही नहीं मिला। एक होता ना कि अंदर जाओ, बैठो, बैठिए, चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, फिर क्वेश्चन, ये सब कुछ है ही नहीं। सीधा ही बोला कि क्वेश्चन है, आप वहीं रुकिए। मैं रुक गया, ऐसे ही खड़ा हो गया। तो फिर बोलते हैं मिस्टर सुशांत, यू हैव बीन स्टेइंग हियर इन दिल्ली फॉर सो लॉन्ग, इतने सालों से आप दिल्ली में रह रहे हैं। कि मेरा रूट्स बंगाल है, बट आई स्टडीड इन दिल्ली, स्कूल, कॉलेज, यू नो, सब कुछ, नौकरी वोकरी सब दिल्ली, मतलब नॉर्थ इंडिया में। इतने सालों से आप दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली वाले के अगेंस्ट बताइए 3 बातें। दिल्ली वाले के अगेंस्ट 3 बातें बताइए। और मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, एक तो बैठने के लिए नहीं बोला और दिल्ली वाले के अगेंस्ट बताओ, ये क्या मतलब है। और मैं सोच रहा था मैं क्या बोलूँ। फिर दाईं तरफ कोई बैठा था, बोलता है कि आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, मतलब कहने का मतलब है बोल के दिखा दिल्ली वाले के अगेंस्ट। फिर बाएं लेफ्ट उसमें कोई बैठा था, बोलता है कि सुशांत नथिंग पर्सनल, स्पीक आउट, जो भी बोलना है बोलो, कोई पर्सनल नहीं है, बोलो। फिर निर्भय शर्मा बीच में कूद पड़ा, मतलब वही चेयरमैन, बोला आई एम इंटरेस्टेड इन सिलेक्टिंग यू मिस्टर सुशांत, बट यू आर नॉट बीइंग एबल टू टेक एनी डिसीजन, आई विल काउंट 5, 1 2। बताओ, दिमाग चौक हो रखा है ना, और वो काउंट कर रहा है। मैं समझ गया ये मेरा पहला और आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद तो ये तो मेरे साथ वो करेंगे, बैठ के मजाक करेंगे 5-10 मिनट और भगा देंगे, अगले साल फिर आ जा, दुर्गा पूजा टाइप आश्चर्य बच्चर आबार होवे, है ना। तो अब मैं सोच रहा था मैं क्या बोलूँ। अब इस जगह पे एक चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जब तैयारी कर रहे थे दिल्ली में, तो उस समय ना हम लोगों ने एक आपस में दोस्त लोग एक साथ बैठ के ना मॉक्स वगैरह हम लोग एक दूसरे के साथ, मतलब जैसे मैंने आपको बिठा दिया, फिर कभी मैं बैठ गया, एक दूसरे के साथ रिहर्सल टाइप हम लोग करते थे। हम लोगों को एक चीज़ पता था कि यूपीएससी में ना स्ट्रेस मैनेजमेंट नाम का एक चीज़ वो टेस्ट करते हैं।
इंटरव्यू में कि आप स्ट्रेस में अगर हैं तो कितना ईजीली आप उस स्ट्रेस से बाहर आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम करना है। स्ट्रेस तो रहेगा ही, किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए स्ट्रेस तो रहेगा। तो मैं सोच रहा था कि मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो रिप्लाई है ना, याद रखना ये चीज़, मैं हर एग्ज़ाम के लिए बता रहा हूँ, यूपीएससी तो है ही, हर एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेस का एंटीडोट है ह्यूमर। ह्यूमर, यू अंडरस्टैंड? ह्यूमर का मतलब थोड़ा हंसी मजाक टाइप है ना। देखो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकता, या तो आपके चेहरे पे स्ट्रेस है या आप ह्यूमरस है। अंदर स्ट्रेस बाहर ह्यूमर, ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारे में से कोई शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन तो है नहीं, एक्टर है, अंदर कुछ बाहर कुछ जो दिख जाता है बाहर, कि जैसे अभी मैं हूँ, अंदर अगर स्ट्रेस है तो बाहर दिखेगा, और अगर बाहर अंदर स्ट्रेस नहीं है तो बाहर नहीं दिखेगा, यही तो है। तो हम लोगों का ये स्ट्रैटेजी था कि अगर वो स्ट्रेस में डालेंगे तो ह्यूमर में जवाब देंगे। और मेरे साथ बदनसीबी या खुशनसीबी कुछ भी बोलो, हुआ ये कि शुरू में ही हो गया स्ट्रेस एकदम घुसते ही। अब मैं सोच रहा था मैं क्या बोलूँ, क्योंकि ये तो शुरू हो गया 1 2 करना, तो मुझे तो बोलना ही है। अगर नहीं बोल पाऊँगा तो वैसे बाहर बोल तो दिया कि हम इंटरेस्टेड है आपको सिलेक्ट करने के लिए, बाद आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो डिसीजन कैसे लेंगे अगर आप स्ट्रेस में डिसीजन नहीं ले पा रहे? तो अब उस समय मेरे दिमाग की बत्ती जो है ना ऑन हो गया। मैंने बोला सर देखिए, 3 पूछा था उन्होंने, मैंने बोला इंग्लिश में होता है, मैं आप लोगों के सामने हिंदी में बोलता हूँ कि सर एक नेगेटिव पॉइंट तो अभी मेरे माइंड में है, और नेगेटिव पॉइंट ये है कि दिल्ली वाले जो है ना, इनको सिर्फ एंड सिर्फ क्रिकेट पसंद है, फुटबॉल पसंद है ही नहीं। जैसे मैंने बोला वो 2 2 4 जो बैठे थे ना वो हंसने लगे। चेयरमैन सीरियस, फालतू क्वेश्चन फालतू जवाब। आप समझ गए, क्वेश्चन फालतू था, जवाब भी फालतू है। भाई दिल्ली वाले के अगेंस्ट 3 पॉइंट बताइए, क्या मतलब है? कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है क्या दिल्ली वाले के साथ? वो लोग चाह रहे थे कि मैं कुछ बोलूँ, मैं कुछ बोलूँगा, जैसे मैं बोलूँगा कि वो लोग कास्टिस्ट है, वो कम्युनल है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, इल टेम्पर्ड है, बोलेगा बेटा साइड में आ जा, मैं बताता हूँ बंगाल के लोग कैसे होते हैं। हाँ, वो ट्रैप था बेसिकली, वो मेरे लिए ट्रैप बिछा के बैठे थे, ये फंसेगा मुर्गा, कुछ तो बोलेगा, क्योंकि प्रेशर इतना डाल दिया ना कि 1 2, उस प्रेशर में आके मुँह से कुछ निकलेगा उल्टा सीधा, और जैसे ही निकलेगा लपेटेगा, बाहर फेंकेगा। मैं गया ही नहीं, पतली गली से निकल आया। मैंने बोला दिल्ली वाले के जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इनको सिर्फ एंड सिर्फ क्रिकेट पसंद है, फुटबॉल पसंद है नहीं। जानबूझ के मैंने बोला था। हंसने लगे, जैसे हंसे मैंने सोचा हाँ काम हो गया, हंसाना था हंसा दिया, ह्यूमर ला लिया ना। स्ट्रेस में मैं ह्यूमर लाया, राइट? नॉट अच्छा, तो स्ट्रेस में उन लोगों ने डालने का कोशिश किया, और मैं उस जगह पे थोड़ा बहुत ह्यूमर ले आया। ह्यूमर इन द सेंस कि ऐसा कुछ बोला जिससे कि उनको मज़ा आए, क्योंकि क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। आप समझ गए होंगे, ऐसे क्वेश्चंस के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं कर सकता है कोई, है ना। दिल्ली वाले के अगेंस्ट बताइए 3 पॉइंट, क्या बताएंगे? ऐसा कौन सा चीज़ है जो दिल्ली वाले में है हमारे अंदर नहीं है, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, किसी भी जगह का हो। तो मैंने बोला ही नहीं। तो चेयरमैन बोलता है नो नो मिस्टर सुशांत, यू आर नॉट राइट, ऐसे बात नहीं है। मैं तो अम्बेडकर स्टेडियम में एक मैच देखने गया, दिल्ली में एक स्टेडियम है अम्बेडकर स्टेडियम, मैच देखने गया था वहाँ पे, और वहाँ पे कम से कम 50,000 के आसपास लोग आए थे मैच देखने के लिए। और मैं मन ही मन में सोचा था अम्बेडकर नगर में 50,000 कहाँ से आ गया, वो तो इतना बैठने का कैपेसिटी नहीं है। अब बोला तो बोला, ठीक है, मैं तैयार था उसके लिए। मैंने बोला सर देखिए, वो जो 50,000 का बात आप कर रहे हैं, वहाँ मैक्सिमम जो लोग देखने गए थे वो सब दिल्ली के जो चित्तरंजन पार्क है, CR पार्क, उस एरिया के हैं, और CR पार्क में सभी बंगालीज रहते हैं दिल्ली में। तो मेरा पॉइंट तो वही है कि बंगालीज आर इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, दिल्ली वाले इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर बोलते हैं कि ओके मिस्टर सुशांत, अब आप ये बताएं आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? तो ओरिजिनली आई एम फ्रॉम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट। तो मतलब उस समय बर्धमान था, अभी तो पश्चिम बर्धमान हो गया है।
तो मैंने बताया, तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आप एक बात बताएं कि बंगालीज के अगेंस्ट बताइए 3 पॉइंट। वो 3 पॉइंट पे लगे रहे, बैठने नहीं बोला। हाँ भाई बिठाओ, थोड़ा सा चाय फाय पिलाओ। बोले नहीं, बोलो। अब मेरे लिए बहुत आसान है, बीइंग ए बंगाली आई कैन टेल यू 300 पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स, 300 बता सकता हूँ। 3 क्या बात है। तो मैंने बोला कि सर बंगालीज़ का ना एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये लोग दिन में, इंग्लिश में बोला बट ये है, अभी हिंदी में बता रहा हूँ, दिन में ये लोग माछ भात बांग्ला में बोला था, माछ भात खाते हैं और फिर सो जाते हैं। इसलिए बंगाल में ना बंगालीज आर नॉट देयर इन बिजनेस, मारवाड़ी कम्युनिटी बिजनेस करते हैं। बाकी 2-4 फिर हंसे। तो चेयरमैन बोलते हैं हाँ मिस्टर सुशांत, एक बार मैं कोलकाता गया था, चेयरमैन बोल रहा है, मैं वहाँ पे 1-1:30 बजे करीब मैं कहीं जा रहा था कुछ ढूंढने के लिए, मतलब ख़रीदने के लिए। तो किसने मुझे बताया कि सर आप 5 बजे आइए। तो मैंने पूछा क्यों? बोला अभी लोग सो रहे हैं। तो जो मैंने बोला वो प्रूव हो गया ना। तो फिर अब ये जो हुआ ना, ये जो चीज़ हुआ है, ये जो 2 मिनट में जो कुछ हुआ है, तो बोलने में ज़्यादा टाइम लगा, ये जो कुछ भी हुआ है मैं समझ गया कि भाई मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट में मैं पास हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन फालतू है, जवाब भी फालतू है। जो वो लोग चाह रहे थे वो मैंने किया नहीं। वो लोग चाह रहे थे कि मेरे मुंह से उल्टा सीधा कुछ निकले कि ये लोग शॉर्ट टेम्पर, डील टेम्पर, कास्टिस्ट, कम्युनल, कुछ तो बोलेगा। अब बोलेगा तो बाहर निकलेगा, वो हुआ ही नहीं। अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, बोला अच्छा ठीक है सुशांत आप आइए, आप बैठिए। फिर मैं बैठा। बैठने के बाद वो डैफ होता है, डैफ मतलब डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, अभी डैफ बोलते हैं, पहले उसको डैफ नहीं बोला जाता था, उसको बायोडाटा बोलते थे। तो बायोडाटा फॉर्म उन्होंने देखा चेयरमैन, बोलते सुशांत आपका हॉबी बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ मेरा हॉबी क्या हो सकता है। देखो मेरा ओरिजिनली मुझे क्या क्या पसंद है मैं बता देता हूँ। मुझे पसंद है पेंटिंग, है ना। मैंने बहुत सारे पेंटिंग कंपटीशन जीते अपने करियर में, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे। शंकर अवार्ड विनर हूँ मैं पेंटिंग में, इंदिरा गांधी अवार्ड विनर पेंटिंग में, दिल्ली में सारा कुछ है ना, नॉर्थ इंडिया में। इंटरनेशनल लेवल पे मेरा एक पेंटिंग मैंने गोल्ड मेडल मुझे मिला है, इंटरनेशनल यूथ एंड बॉयज़। पेंटिंग ओरिजिनली मेरा हॉबी है, ठीक है। मुझे गिटार बजाना पसंद है, गिटार बजाता हूँ, ये मेरा हॉबी है। तीसरा बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, ये भी मेरा हॉबी है। बट आप बताओ इन तीनों में से मैंने क्या हॉबी लिखा होगा, आप लोग गेस करो। 3 बताया मैंने, तीनों में से क्या बताया होगा उसमें? डेफ में पेंटिंग। आप लोग लास्ट बेंच, मैडम तीनों में से क्या बताया मैंने? पेंटिंग, पेंटिंग, गिटार एंड बुक्स रीडिंग। आप बताओ। हाँ कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एग्ज़ाम को समझना पड़ेगा। देखो अगर मैं पेंटिंग लिख देता हूँ वहाँ पे तो वही वाली बात है, आप बैल मुझे मार। ऑलरेडी यूपीएससी ने जीना हराम कर दिया है, इतना कुछ पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये करो, वो करो, जा इतना बड़ा नौटंकी है यूपीएससी खुद ही। ऊपर से पेंटिंग डालूंगा तो क्या पता जाते ही क्वेश्चन पूछेगा बताओ राजपूताना पेंटिंग और इस पेंटिंग मुगल पेंटिंग में क्या डिफरेंस है, मुझे आज तक नहीं पता। मैं क्यों पढ़ूं? पेंटिंग लिखने का मतलब है कि वो एक्सपेक्ट करेंगे ये कुछ बहुत कुछ बताएगा, मुझे जाना ही नहीं है। पेंटिंग बनाता हूँ, पढ़ता थोड़ी हूँ कि नॉलेज होगा। तो मैंने बोला कि भाई ये सब देना नहीं है, फालतू का हटाओ इसको। गिटार वो पूछ लेगा ए कॉर्ड, बी कॉर्ड, ए फ्लैट, बी फ्लैट, कॉर्ड बताएगा वहाँ पे। मैं गिटार बजाता हूँ, नॉलेज थोड़ी है मेरे पास, मैंने दिया नहीं। बुक रीडिंग हो तो और भी खतरनाक है, तो सारे के सारे 65+, बहुत ज़्यादा पता है उन लोगों को, मैंने दिया ही नहीं, तीनों ही नहीं दिया। देखो दिस इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को लगता होगा कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, यूपीएससी क्रैक करने के लिए एक थोड़ा सा स्मार्टनेस चाहिए, है ना, वो स्मार्टनेस चाहिए, है ना, आपको वो स्मार्टनेस एग्जिबिट करना पड़ेगा। मैंने हॉबी लिखा था प्लेइंग लूडो विथ माई मदर। आप पूछ ले क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो ना कोई गोल्ड मेडल, वर्ल्ड कप, ना कुछ हुआ है, क्या पूछेगा? 2-4 चीज़ें हैं पूछ सकता है, वो तो पहले से मैंने रट के गया था, ये पूछेगा, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, पूछेगा ज़रूर कि बहुत ही अजीब सा हॉबी है ना, समय ख़राब भी करना ज़रूरी है इनका।
क्योंकि अगर इन लोगों को खाली छोड़ दिया तो पता नहीं क्या क्या पूछेगा। खाली भी नहीं छोड़ना है, पूछवाना है क्वेश्चन और अपने स्ट्रेंथ पे। तो मैंने लिखा तो बोलते अच्छा ठीक है, बहुत ही अजीब सा हॉबी है। बोला बताओ आप अपने मदर के साथ लूडो क्यों खेलते हैं? अब मैं ज़िंदगी में कभी खेला नहीं है लूडो मम्मी के साथ कभी नहीं खेला है, मैंने लिखा सिर्फ। तो बोले बताओ क्या क्यों खेलते हैं आप? मेरा एक फ्रेंड था वो साइकोलॉजी ऑप्शनल वाला, उससे मैंने एक बहुत बढ़िया सा एक आंसर लिखवा लिया था कि बताओ बेटा बूढ़े बूढ़ी ऐसे लोगों के साथ लूडो वूडो खेलने से क्या फ़ायदा होता है। उसने बहुत बढ़िया सा आंसर दिया था, मैंने रट के गया था, वही वहीं पे वॉमिट कर दिया। चेयरमैन सुना, निर्भय शर्मा बोलता है कोचिंग सेंटर वाला जवाब मत दो, सीधा बोला। उनको समझ में आ जाता है ना कि रटा हुआ कुछ बता रहा है, दिल से नहीं बता रहा है। तो ऐसे में जैसे बोला कि कोचिंग सेंटर वाला जवाब मत दो, मेरा मुंह ऐसा हो गया मेरे को तो इतना ही आता था और कुछ पता ही नहीं था। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ दोनों में से कौन सा पसंद है तुम्हें? ये ना, ये जो पूछा, जैसे इन्होंने पूछा मैं बोला अब मज़ा आएगा। क्योंकि जैसे वो लोग हमें ट्रैप करते हैं ना, हम लोग भी एज अ कैंडिडेट यूपीएससी के जो लोग इंटरव्यू लेते हैं उनको ट्रैप करते हैं। तो हमने, क्योंकि मैं चाह रहा था कि वो क्वेश्चन पूछे, ट्रैप हो जाएंगे। और हुआ वही, जैसे ही पूछा कि बताओ दोनों में से कौन सा पसंद है, दो है ना लूडो में, एक तो नॉर्मल सा है और एक है सांप सीढ़ी वाला। तो जैसे पूछा मैंने बोला बहुत मज़ा आ जाएगा। मैंने बोला सर सांप सीढ़ी। बोला क्यों? मैंने सर जस्ट यूपीएससी, नीचे से ऊपर जाओ, सांप ने काटा फिर नीचे आ जाओ। बोला क्या मतलब? मैंने बोला सर प्रीलिम्स क्रैक करो, मेंस क्रैक करो, इंटरव्यू तक जाओ, फेल हो गए फिर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, यही चलता रहता है तो सब हंसने लगे, चार लोग बैठे थे। चेयरमैन ने नहीं हंसा, बोलता है कि अच्छा व्हाट डू यू मीन, हम लोग सांप है? मैंने बोला सर आप लोग सीढ़ी है। बोला हाँ तब ठीक है, सांप तो यूपीएससी है। बोला हाँ यूपीएससी है। तो माहौल क्या हुआ कि वो जो शुरू में जो हुआ ना, माहौल को मैंने कंप्लीटली हाईजैक कर लिया। मतलब ऐसा माहौल बना दिया कि हंसी मजाक टाइप, क्योंकि मेरा जवाब ऐसे था, क्योंकि और वो भी ऐसा था ना कि ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है कि मैंने ज़बरदस्ती वहाँ पे जाके जोक्स क्रैक किया, जो पूछा उसी का जवाब था। दिस इज अन आर्ट, है ना, यू हैव टू, वी प्रैक्टिस इट अ लॉट। तो जैसे ये हुआ तो उन लोगों को बहुत मज़ा आया, बोला कि अच्छा चलो ठीक है ये हो गया। फिर वो लोग सीरियस बिजनेस पे आए, इंटरनेशनल रिलेशंस, नो करंट अफेयर्स, सब्जेक्ट्स, दिस दैट, एक एक करके क्वेश्चंस पूछते चले गए। आई थिंक इट वाज अराउंड 35 ऑड मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला है। उसके बाद मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ। बंगाल के बारे में भी 2-4 क्वेश्चन, हर जगह से मतलब क्वेश्चन कवर किया उन्होंने। दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू में ऐसा ही होता है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको मतलब नॉलेज टेस्ट नहीं होता है, आपका पर्सनालिटी के बहुत सारे डायमेंशंस वो लोग टेस्ट करते हैं, नॉलेज टेस्ट नहीं होता है, राइट? करेक्ट? समझ में आया इंटरव्यू में कैसे? इसमें नॉलेज वाला बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं होता है, आप आता है ठीक है, नहीं आता है कोई बात नहीं, क्योंकि नॉलेज वाले तो अगर प्रीलिम्स मेंस में हो ही जाता है, ठीक है। ये है कम नॉर्मल एक इंटरव्यू हमारा रहा है। इसमें 275 मार्क्स, हम लोग के टाइम इट वाज अराउंड 300 मार्क्स, अब ये 275 मार्क्स का हो गया है। तो 275 मार्क्स में आपको वो लोग देंगे। वो नॉर्मली जो है 60% मार्क्स अगर आपने बहुत अच्छा किया है तो वो देते हैं, बहुत अच्छा अगर आपने किया है। बहुत रेयरली 62-63% जाता है। और अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, हाँ सर, सॉरी सर, नो सर बोल के आ जाएंगे तो 40% मिलेगा। गाली गलौज नहीं करना है, बाकी सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर बोलते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 40% वो लोग देंगे, ठीक है ना, ऐसे कुछ नहीं है कि लोग बाहर निकाल देंगे, कोई बात नहीं। मेरा एक फ्रेंड है, नाम नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी सर्विस में है, फिर आप जाके बता दोगे कि आपके बारे में बोल रहे थे। लास्ट अटैम्प्ट था, 4th अटैम्प्ट था, मतलब उस समय 4 ही अटैम्प्ट हुआ करता था। तो 4th अटैम्प्ट में ना, तो वो इंटरव्यू देने के JNU के स्टूडेंट, क्वेश्चन आया सॉरी सर, फिर सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। तो चेयरमैन था बाला गुरुस्वामी, बोलता यार यार कुछ आता भी है तुमको कुछ आता भी है? साइड में देख के बोला कि पता नहीं कहाँ से आ जाता है उठ के। तो अब उसको लगा कि यार 3 अटेम्प्ट तो गया, ये 4था अटेम्प्ट में इंटरव्यू भी गया, क्योंकि चेयरमैन खुद ही बोल रहा है तुमको कुछ आता भी है, इसका मतलब गया।
तो मन ही मन में सोच आता है कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, इससे और क्या खराब होगा, सभी तो लुट गया है, ख़त्म हो गया है। उसने हिम्मत करके बोला कि सर जो आता है वो आप लोग पूछ नहीं रहे, जो नहीं आता वही पूछ रहे हैं। तो बाला गुरुस्वामी ने गुस्से में आग बबूला हो गया, बोला आता भी है, बता तुमको क्या आता है। ये और भी ज़्यादा खतरनाक है कि ये बताना कि ये आता है, क्योंकि उन लोगों के पास तो ज़्यादा नॉलेज है। फिर भी उसने बोला, जैसे बोला ना कि बता तुमको क्या आता है, माइंड काम कर गया, बोला सर एक ही चीज़ आता है। बोला बताओ क्या आता है, हाउ टू क्रैक यूपीएससी। बोला अच्छा ये आता है तुमको बोला हाँ सर आता है। बोला ठीक है, अच्छा बताओ। वो मजाक होता ना कि चलो इनके साथ मस्ती करो 10-15 मिनट। बोला बताओ हाउ टू क्रैक प्रीलिम्स। सर ये पढ़ना है, ऐसे ऐसे करना है, प्रीलिम्स हो जाएगा। बोला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बताओ आगे चलो। सर ये करने से मेंस हो जाएगा। वाह बहुत बढ़िया, तुमको तो बहुत कुछ आता है, बताओ आगे चलो। बोले सर आता नहीं। बोला अरे तुमने अभी बताया सब आता है। बोले सर इंटरव्यू तो निकल नहीं रहा, आप पास करा दीजिए, कल बता देंगे आपको चेयरमैन बोलता है कि ये बात भी सही है, वहाँ तो इंटरव्यू हो नहीं रहा। वहीं से इंटरव्यू उसका टर्न हुआ, वहीं से इंटरव्यू घूम गया। प्रेजेंटली ही इज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन बिहार, IAS। गॉट इट। तो नथिंग टू डू विद द नॉलेज। ये सब देख रहे होंगे, नॉलेज वॉलेज का कोई लेना देना है क्या, है नहीं। हाउ यू आर एक्चुअली हैंडलिंग द सिचुएशन। देखो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं, और दूसरा आप मैन मैनेजमेंट में कितना एक्सपर्ट है। सिचुएशन को हैंडल करना और लोगों को हैंडल करना, तीसरा कुछ है तो बताओ, है क्या। अभी जो है, अभी हम लोग या मैं क्या कर रहा हूँ, या तो मैन मैनेजमेंट कर रहा हूँ या सिचुएशन मैनेजमेंट कर रहा हूँ। ये मेरे लिए नया सिचुएशन है, ऐसा करके मैंने कभी पकड़ा ही नहीं है। ऐसा पकड़ते मुझे लगता है भाई गाना गाना पड़ेगा, ठीक है ना। पर मैनेज कर रहा हूँ सिचुएशन, ठीक है। तो या तो सिचुएशन को मैनेज करो या मैन मैनेज करो आप। और वो चीज़ आप अगर आपने एग्जिबिट किया, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया आपने, उसने जो अपना उस समय जो माइंड में आया उसको यूज़ किया, इंटेलेक्ट को यूज़ किया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। गॉट इट। इस टाइप से आपका इंटरव्यू होता है, राइट। नेक्स्ट पार्ट आपका जो है दैट इज़, अगर इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू के से पहले जो है आपका मेंस है, ठीक है। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटरव्यू अगर है तो बताओ, फिर मेंस में जाएंगे। कुछ पूछना है, कुछ माइंड में क्वेश्चन है, कुछ ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में किसने भर रखा है कि इंटरव्यू में ऐसे होता है वैसे होता है, पूछो। है कुछ? नो? हाँ प्लीज। Sir, I also want to crack jokes like you in the interview. So what is the art? बैठो मैं बताता हूँ, थैंक यू। देखो आर्ट ये है ना कि जोक्स का आपको पता है ना कि एक तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो कॉमेडी की जगह पे ट्रेजेडी हो जाएगा। मतलब गलत जगह पे जोक्स क्रैक कर दिया तो वो ट्रेजेडी हो जाएगा। ये आपको देखना है कि क्वेश्चंस के बाद अगर वो ऑटोमेटिकली आ रहा है, जैसे मुझे पता थी कि वो क्वेश्चन पूछेंगे कि लूडो में कौन सा आप खेलना पसंद करते हैं, मैंने गेस किया था, और गेस किया था तो मेरे माइंड में था कि ये पूछेगा तो मैं बताऊंगा सांप सीढ़ी, और सांप सीढ़ी क्यों तो मैं यही बताऊंगा कि यूपीएससी है ये। आप समझ गए। तो लोगों को लग सकता है कि ये तो वैसे ही बोल दिया होगा, ऐसे ही कुछ नहीं होता है। हर चीज़ प्रिपरेशन के साथ ही गया था मैं, मुझे पता था कि ये ऐसे 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 क्वेश्चन आएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन जब पूछा था कि दिल्ली वाले के अगेंस्ट बताइए, उसमें भी मेरा प्रिपरेशन नहीं था क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये क्वेश्चन आ सकता है। बट मेरे माइंड में ये था कि मैं ऐसा कुछ बताऊंगा जिससे कि उनको लगे कि मज़ा आ गया, है ना। क्योंकि वो लोग जो चाह रहे थे कि मेरे मुंह से निकले कम्युनल कास्टेज दिस दैट, वो मैं ना करूं। दैट आई वाज न्यू दैट आई न्यू, इजंट इट। बट मेरे माइंड में सिर्फ ये था कि मुझे कुछ ना कुछ एक ह्यूमर डालना पड़ेगा किसी ना किसी जगह पे, और वो मैंने वहाँ पे डाला, एंड दैट हेल्प मी अ लॉट, राइट। ओके, आप लोग मुझे 12 बजे एक बार बता देना, ठीक है ना। अभी क्या टाइम हो रहा है? 11:05 ना, 12 बजे एक बार बता देना, आई वाइंड अप, है ना, उसके बाद नेक्स्ट क्लास है। तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो आप तैयारी के साथ आपको जाना है, कुछ क्वेश्चंस का जवाब
आप अगर पहले से तैयार करके रखेंगे, जैसे मैंने क्या किया था, मेरा जो डैफ जो था ना, जो बायोडाटा है, वो मैंने अपने ऑफिस में इधर उधर सभी लोगों को मैंने दिया हुआ था। मैंने बोला भाई कि तुम लोग मुझे 20-20 क्वेश्चन देना। तो आई कलेक्टेड और अराउंड 2500 क्वेश्चंस ऑल टुगेदर अपने ही डैफ के ऊपर, कि नाम का मीनिंग क्या है ना, इस नाम से कोई रिलेटेड कोई फेमस पर्सनैलिटी है या नहीं, मतलब तो एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल पहले से ही बना लिया था और उसका आंसर पहले से तैयार कर लिया था। जिससे होता क्या कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आप पहले से प्रिपेयर्ड है कि अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं क्या बोलूँगा, वो क्वेश्चन आया तो मुझे क्या बोलना है, वहाँ ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। दैट हेल्प मी, है ना। तो आप लोगों को भी ऐसा ही करना है ना। पहले तो आप जब इंटरव्यू तक पहुँचेंगे तो आपको ये करना है, ठीक है। तो दिस इज़ योर इंटरव्यू। मेंस में देखो 1750 है। मेंस का एक पार्ट तो आपको पता ही है कि एक इंडियन लैंग्वेज क्वालिफाइंग नेचर है, बांग्ला, हिंदी, उर्दू, नेपाली, ये सब तो है ना। उसमें से एक लैंग्वेज आपको लेना है, क्वालिफाई करना है। सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज है, वो भी क्वालिफाइंग नेचर है। पढ़ना नहीं है। हम लोग दिल्ली में ये बोलते हैं कि जो बच्चे इन सब सब्जेक्ट्स का पढ़ाई करते हैं उनका कभी सिलेक्शन नहीं होता है। मतलब इतना लो लेवल का क्वेश्चन होता है कि पढ़ना वढ़ना नहीं है। ये इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश, इसके लिए पढ़ना मना है, ठीक है। आप ऐसे ही चले जाना। जैसे मैं जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन मैं मॉर्निंग में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहा था, क्योंकि मेरा पबैड ऑप्शनल था। तो पढ़ना नहीं है आप लोगों को, तैयारी नहीं करनी है, सीधे चले जाओ, आपका हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है ना। पढ़ लिया तो फेल हो जाओगे, ठीक है। तो पढ़ना नहीं है। ये 2 पेपर क्वालिफाइंग है। इसके बाद एक पेपर है आपका एसे पेपर में देखना एक चीज़ का ध्यान रखना, एसे पेपर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर्स में से है। जो टोटल 1750 में ये जो 250 मार्क्स का जो एसे है, इसमें आपका स्कोर करने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है ना। व्हाट यू नीड टू डू हियर इन एसे, सबसे पहले तो आपका जो एंटायर सिलेबस है यूपीएससी का, अगर आपने प्रॉपरली तैयार किया है, ईच एंड एवरी GS1, GS2, GS3, GS4 प्लस आपके करंट अफेयर्स को अगर आपने ठीक से तैयार किया है तो एसे इज़ डन। एसे के लिए मार्केट में कोई बुक नहीं है, और प्लीज़ एसे के लिए कोई बुक खरीदना भी नहीं है। अगर कोई बोले कि ये किताब है पढ़ लो, तो बोलना ठीक है, तुम पढ़ो, तुम पास हो जाओ, तुम टॉपर बनो, हमें नहीं बनना है, ठीक है ना। पढ़ना मना है। आपको यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको ठीक से पढ़ना है, बट एसे के लिए लिखना है। एसे एक्चुअली एक आर्ट है, इट्स नॉट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में जैसे मान लो अगर कोई क्वेश्चन करंट अफेयर्स में वो लोग पूछते हैं तो उसका जवाब एक पर्टिकुलर तरीके से दिया जाता है, लेकिन वही वाला अगर एसे में आ जाए, सेम टॉपिक एसे में आ जाए, तो वो डिफरेंट हो जाएगा। तो एक आर्टिस्टिक एस्पेक्ट है कि किस तरीके से आप चीज़ों को अनफोल्ड करते हैं, है ना। हर चीज़ का एक डिफरेंट एंगल्स होता है ना, ईच एंड एवरी एंगल को कैसे अनफोल्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पॉवर्टी एक क्वेश्चन आ जाए आपका जीएस में, तो पॉवर्टी क्वेश्चन अगर जीएस में आता है तो समझ लेना कि ये इकोनॉमिक्स से लिंक्ड है, इकोनॉमिक्स से ही होगा, पॉवर्टी किस में होगा, है ना। बट अगर ये चीज़ अगर ऐसे के फॉर्म में आ जाए तो पॉवर्टी सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, फिर उसमें बहुत सारे डायमेंशंस आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको ज्योग्राफिकल एंगल से भी देख सकते हैं। ज्योग्राफी का जो एंगल है, अ कंट्री इज पुअर और रिच मे बी डिपेंडेंट ऑन सर्टेन ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज इट हैज़ और इट डजंट हैव, इजंट इट। ऐसे बहुत से एरियाज है जहाँ पे रिसोर्सेस नहीं है। अगर नहीं है तो चांसेस ये है कि विल बी पुअर। अगर गल्फ कंट्रीज़ है, रिसोर्सेस है, ऑयल है, तो चांसेस ये विल बी रिच, है ना। पॉवर्टी एक ज्योग्राफी का एंगल है, पॉवर्टी का एक हिस्ट्री का एंगल है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। इंडिया at one point of time in the history was a very rich nation. Then Britishers came, plundered, exploited. Now India has become poor. So how a particular nation becomes poor because of historical circumstances, that is another angle that you can talk about. Poverty is a psychological, has got a psychological dimension as well. है ना? If you see those people who are poor, they will always take tentative decisions. मतलब वो लोग ना डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा फार्म नहीं हो पाते हैं। जैसे मान लो मैं ऑफिस में गया, प्राइवेट ऑफिस में काम करता हूँ,
बॉस ने मुझे कुछ बोला, मुझे गुस्सा आया, मुझे लगा कि अभी मैं रिज़ाइन करके चला जाऊं। अगर मैं पुअर हूं तो मैं वो डिसीजन नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे घर में बहुत से लोग हैं, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो मैं नहीं ले पाऊंगा। अगर मैं रिच हूं तो मैं उसी वक्त रिज़ाइन करके आ सकता हूं। तो इस साइकोलॉजी को देख के, डिसीजन मेकिंग को देख के भी हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन पुअर है, कौन पुअर नहीं है। तो इसी तरीके से ना पॉवर्टी को अनफोल्ड करना पड़ेगा फॉर डिफरेंट एंगल्स है, एंड इसके क्या रिपरकशंस है, क्या इम्पैक्ट है, वो ऐसे में लिखना पड़ेगा। दैट्स एन आर्ट। वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा जैसे आप तैयारी करेंगे। तो ऐसे के लिए बहुत कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, लिखना ज़रूर है। लिख के इवेल्युएट कराना है सर लोगों से कि ये कैसा लिखा है, कैसे इवेल्युएट करना है। आपको बेसिक इनपुट्स रखना पड़ेगा ऑफ कोर्स, कि मान लो जैसे करंट अफेयर्स आपके पास होना चाहिए, बेसिक जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब आपके टिप्स में होने चाहिए, सो दैट आप ऐसे को लिख सकें, बढ़ा सकें। क्योंकि 2 ऐसे लिखना है, 1000 वर्ड तो लिखना है एक ऐसे में, तो ऑब्वियसली आप ऐसे को लिख पाएंगे। गॉट इट? तो इसके लिए भी पढ़ना बहुत कुछ नहीं है। देखो अभी तक मैंने पढ़ने के लिए कुछ नहीं बोला। क्वालिफाइंग 2 पेपर ऐसे, इसमें भी कुछ पढ़ना नहीं है। अब आया आपके पास 1500 ऑप्शनल और 1000 जीएस। ये जो ऑप्शनल जो है, ऑप्शनल इज गोइंग टू बी अ डिसाइडर अगेन। जैसे ऐसे है वैसे ऑप्शनल भी है। ऑप्शनल में क्या है देखो, सोशोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। हर कैंडिडेट का अलग अलग ऑप्शनल हो सकता है। आप लोगों का ऑप्शनल क्या है अभी तक आप लोगों ने सोचा है? क्या क्या है बताओ? मेजर क्या लिया है? बैठो बैठो। पॉलिटिकल साइंस, PSIR है ना आपका, ज्योग्राफी, PSIR, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। आप ज्योग्राफी, फिजिक्स, बाप रे बाप, मैं तो हाथ वो हो गया। हाँ बताओ, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इंग्लिश, अच्छा, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। आपका PSIR, पीछे बोलो बोलो बोलो। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशोलॉजी। आप पीछे साइकोलॉजी, हाँ, पॉलिटिकल साइंस लास्ट में, हिस्ट्री। ठीक है, मतलब मोर और लेस यू पीपल हैव डिसाइडेड कि ऑप्शनल क्या लेना है। ठीक है ना? देखो ऑप्शनल में फर्स्ट पेपर को तो आपको ठीक से पढ़ना ही है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में आपका थियरीज वगैरह ज़्यादातर होते हैं। अगर आपने सोशोलॉजी वगैरह लिया है, पबैड वगैरह जो है ना, उसमें थियरीज वगैरह ज़्यादा है। सेकेंड पेपर थोड़ा सा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो बन जाता है ना, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो लोग ज़्यादा पूछते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है। तो फर्स्ट पेपर को अगर आपने ठीक से पढ़ा है, और सेकेंड पेपर ऑप्शनल जो है उसमें अगर आपने करंट अफेयर्स को अगर आपने पंच किया है, करंट अफेयर्स के साथ अगर आपने ऑप्शनल को पढ़ा है, और उस तरीके से अगर आपने आंसर को, एक्चुअली सेकेंड पेपर इज़ बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर आपने वो पेपर चेकर को अगर आपने एक बार बता दिया कि भाई देखो आई एम वेरी गुड एट अप्लाइंग नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, तो वो मार्क्स देगा, मार्क्स देगा वो, है ना, उसमें कोई इशू नहीं है। आपको सिर्फ ये बताना है उसको कि भाई देखो मुझे इस पेपर के बारे में, मतलब एप्लीकेशन, नॉलेज का जो एप्लीकेशन है उसके बारे में मेरे पास है मेटल, मैं अप्लाई कर सकता हूँ नॉलेज को। अदरवाइज देखो यूपीएससी में ना नॉलेज वॉलेज का बहुत ज़्यादा खेल नहीं है, क्योंकि नॉलेज इस, जैसे मान लो लाइब्रेरी, नॉलेज है या नहीं है? कैन अ लाइब्रेरी अप्लाई नॉलेज? नो। तो इनको क्या चाहिए, लाइब्रेरी या अ पर्सन हु कैन अप्लाई नॉलेज, हु कैन अप्लाई नॉलेज। अगर आपका नॉलेज वॉलेज ज़्यादा चाहिए तो आप JNU में जाइए या किसी और जगह पे रिसर्च वगैरह करके, PhD करके यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाइए। इनको नॉलेज से ज़्यादा लेना देना नहीं, नॉलेज तो चाहिए, नॉलेज तो बेसिक चाहिए। बेसिक नॉलेज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये एक डायमेंशन आपका ऑप्शनल में देखना पड़ेगा। ठीक है ना? ऐसे में आपको एज मेनी एंगल्स एज पॉसिबल, कितना ज़्यादा विड्थ में आप जाते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कितना ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? डेप्थ में जाने का मतलब एक ही चीज़ को
लिखते चले गए और 1000 शब्द आपका ख़त्म हो गया, और फिर देखा, घड़ी देखा, वो देखा, आपने ख़त्म हो गया, 1000 लिख दिया आपने, एक ही डायमेंशन में लिखते चले गए, आपका ऐसे बर्बाद हो जाएगा, आप फेल हो जाओगे। ठीक है, आपको विड्थ को टच करना है, अलग अलग एंगल्स को टच करना है, छोड़ना है, टच करना है, छोड़ना है। आपको ये बताना है कि एक ही इशू पे मैं डिफरेंट एंगल से सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ। क्योंकि एज ए सिविल सर्वेंट जब आप पॉलिसी बनाएंगे ना, तो जैसे मान लो हेल्थ पॉलिसी का बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हेल्थ पॉलिसी का मतलब है सिर्फ रिलेटेड टू हेल्थ? नो। अगर आप हेल्थ को देखेंगे, हेल्थ इज, इसके साथ कनेक्शन है एजुकेशन का, है या नहीं? अगर आपके पास नॉलेज है तो ऑब्वियसली आप हेल्थ के बारे में कॉन्शियस रहेंगे या नहीं? ऑब्वियसली, है ना। अगर आपको पता है कि एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप होंगे मतलब हेल्थ के बारे में कॉन्शियस। हेल्थ के साथ कनेक्शन है आपका इनकम, है या नहीं? जेब में एक पैसा नहीं है, आप बोले मैं जा रहा हूँ हेल्थ चेकअप करने के लिए, है ना, नहीं होगा। ठीक है ना। तो हेल्थ इट हैज़ गॉट मल्टीपल डायमेंशंस। आपको ये बताना है पेपर चेकर को, देखो भाई मैं ईच एंड एवरी एंगल को कंसिडर किया है। ठीक है ना। अगर ये चीज़ आप कर पाएंगे तो मार्क्स मिलेगा। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना आप जो कुछ भी लिखेंगे यूपीएससी के लिए वो कचरा है। कचरा समझते हैं आप? उठा के डस्टबिन में डालने वाला चीज़ है। क्योंकि वो 5 मिनट 7 मिनट में कौन क्या लिखेगा बताओ, दिमाग तो चलता है नहीं, दिमाग तो चोक कर जाता है। उनको सिर्फ ये चाहिए कि आप सही डायरेक्शन में सोच पा रहे हैं या नहीं, क्या आपका डायरेक्शन सही है। अगर सही डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं, सोच पा रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, फिर वो मार्क्स देंगे। अगर डायरेक्शन ही गलत है, आप जितना मर्जी लिखते जाओ, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। तो ऐसे को आपको क्या करना है कि फैलाना है। हिंदी में हम लोग दिल्ली में बोलते हैं रायता फैलाना होता है। यू अंडरस्टैंड रायता फैलाना, कि फैलाते रहो, फैलाओ इधर से उधर। या और भी रूड लैंग्वेज में दिल्ली में हम लोग बोलते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आप आईएएस बनेंगे या नहीं बनेंगे। हम लोग बोलते हैं दिल्ली में, जब आपको किसी भी टॉपिक में बकवास करना आ जाएगा, अब बन गया है सिविल सर्वेंट। बकवास ही तो करना, और क्या है। कोई भी टॉपिक है, आता है, साइंस भी आता है, रिलीजन भी आता है, स्पोर्ट्स भी आता है, ये भी आता है, ज्योग्राफी आता है, साइंस आता है, हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, मतलब पता नहीं क्या क्या आता है हमें, वो उतना ही आता है। अगर किसने और ज़्यादा पंच किया, कुछ नहीं निकलेगा मुँह से, जितना पढ़ा है उतना ही तो आता है। कौन में पॉइंट, पर आता ऐसा है कि सामने वाला डर जाएगा। ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, हिस्ट्री आता है, ऑप्शनल भी आता है, हर चीज़ आता है, वह इतना इतना सा चटनी टाइप, है ना, उससे ज़्यादा आता नहीं है, इतना ही काफ़ी है। ठीक है ना। डेप्थ में नहीं जाना है, विड्थ में जाना है ऐसे में। ठीक है ना। सेम इज द केस विथ योर सेकेंड पेपर इन योर ऑप्शनल। सेकेंड पेपर में आपको क्या करना है, सेकेंड पेपर में आपको एप्लीकेशन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप दिखा पाएंगे, या किसी भी नॉलेज का एप्लीकेशन पार्ट अगर आप शो कर पाएंगे, तो सेकेंड पेपर में मार्क्स वो देंगे। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट पेपर इज बेसिकली थियरीज, नॉलेज, दिस एंड दैट। इसलिए नॉर्मली देखा है, जनरली मैं बता रहा हूँ, एक्सेप्शंस आर देयर, फर्स्ट पेपर में नॉलेज ज़्यादा होता है, मार्क्स कम। सेकेंड पेपर में नॉलेज कम, मार्क्स ज़्यादा। क्यों? क्योंकि सेकंड पेपर तो एप्लीकेशन बेस्ड है ना। कई बार क्या होता है कि नॉलेज कम है बट आपने एप्लीकेशन शो कर दिया, तो मार्क्स ज़्यादा दे देंगे वो, है ना। फर्स्ट पेपर में बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर, जैसे मान लो सोशोलॉजी ऑप्शनल है, किसने बोला कि चलो मार्क्स के बारे में आप बताइए, कार्ल मार्क्स, आपने अगर सही लिख दिया तो पेपर चेकर बोलेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मार्क्स ने जो बोला लिख दिया तुमने, मैं क्या करूँ, डांस करूँ, नहीं देगा मार्क्स। अगर आपने गलत लिख दिया, बोले देखो इसको ये भी नहीं आता, काटो मार्क्स। तो कुल मिला के सही किया तब भी मार्क्स नहीं है, नहीं किया तो मार्क्स कट जाएगा। तो अल्टीमेटली फर्स्ट पेपर में मार्क्स मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहता है। आपको नॉर्मली दोनों पेपर मिला के अगर 310-20 के आसपास अगर आ जाएं, मैं इसका बात कर रहा हूँ ऑप्शनल का, तो यू शुड बी वेरी हैप्पी विथ 310-20 में आप रैंक एकदम टॉप में रहोगे, है ना। 275 से भी हो जाएगा, बट 310-20 वुड बी बेटर। ठीक है। और ऐसे में जैसे मैंने बताया कि 125 का अगर आपका टारगेट है, 140 भी आता है, 150 भी आता है, 125-30 के आसपास आपको मिनिमम एक टारगेट रखना पड़ेगा। और इंटरव्यू जैसे मैंने बताया कि अगर आपने ठीक ठाक दिया है,
बहुत अच्छा गया है तो 60% तो कहीं नहीं गया। और अगर सॉरी सर, नो सर, ठीक है सर, घर जाकर देख लेंगे, गाली गलौज नहीं किया, उनको गुस्सा नहीं दिलाया, बस इतना ध्यान रखना है, तो 40% कहीं नहीं गया, है ना। क्योंकि आंखों में आँख डाल के सॉरी सर बोलना भी तो एक आर्ट है। बेशरम बन के नहीं आता, नहीं आता तो नहीं आता, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ भाई। वो इंसान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेशन में जो झूठ नहीं बोलता है, इज़न्ट इट। झूठ बोलेंगे तो फिर तो मार्क्स कटेंगे ना, वो तो बाहर निकाल देंगे आपको इमीडिएटली। अगर ब्लफ पकड़े गए, अगर ब्लफ पकड़ लिया उन लोगों ने तो आपको बाहर निकाल देगा, बोलेगा कुछ नहीं, मार्क्स नहीं देगा। तो आपको ब्लफ नहीं देना है, सीधा सीधा सॉरी बोल देना है। 10 बार बोल दो, 100 बार बोल दो, उसमें क्या है। तो 40% कहीं नहीं गया, 40% तो मिलेगा। गुस्सा नहीं दिलाना है बस। तो ये आपका प्रीलिम्स, मेंस का एसे एंड ऑप्शनल। एनी डाउट अबाउट एसे एंड ऑप्शनल? कुछ पूछना है? देखो मेरा ऑप्शनल रहा है सोशियोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों के बारे में थोड़ा बहुत मैं बता सकता हूँ, बाकी ऑप्शनल तो मुझे पता नहीं। ये दोनों में अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। सबसे छोटा सिलेबस मेरे ख्याल से सोशियोलॉजी का ही है, छोटा सिलेबस है, तभी मैंने लिया था। देखो मेरा बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स में, मैंने मास्टर्स किया, नहीं लिया, डर लगता है इकोनॉमिक्स, क्योंकि ब्लफ नहीं दे सकते ना, कहानी नहीं लिख सकते इकोनॉमिक्स में, जो है वो लिखना पड़ेगा। जैसे ज्योग्राफी टेक्निकल सब्जेक्ट है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है, मार्जिन फॉर एरर है ही नहीं, वही बोलना पड़ेगा जो है। तो मैंने पीजी किया हुआ है इकोनॉमिक्स में, बट मैंने शुरू में 5-7 दिन मतलब देखा इकोनॉमिक्स लूँ या ना लूँ, फिर मुझे लगा कि भाई बेटर ये है कि ना ले, क्योंकि एकदम स्ट्रेट आंसर लिखना है, कहानी नहीं चलेगा। फिर मैंने सीए में किया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, कॉमर्स। अकाउंटेंसी लेने का एक चांसेस था कि मैं अकाउंट्स लूँ। 2-4 दिन बहुत सोचा कि अकाउंट्स तो आता है, ले लेते हैं, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला भाई लेंगे कि पता चला बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ, हॉल में टैली नहीं हुआ तो क्या करेंगे, दोबारा देखने जाए तो क्वेश्चन छूटेगा, और एक बार गलत हो गया, दोबारा करने का, ठीक करने का कोई चांस नहीं है। मैंने बोला इसको भी हटाओ, 2 ऑप्शनल लो जहाँ पे कहानी लिख सकते हैं, बकवास कर सकते हैं। 2 ऑप्शनल में से क्या है, मैंने देखा एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ भी लिखो सही है, कुछ भी लिखो सही है, आप एक बार पढ़ लेना और पढ़ के ये अच्छा ये ठीक है, ये लिखते हैं वो लिखते हैं, जो भी लिखो सही है। सेकंड सोशियोलॉजी, एक बार पढ़ लो तो अपने हिसाब से लिखो, आप गलत हो ही नहीं सकते, मतलब गलती से भी गलत नहीं हो सकते। गलती से ही आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने कुछ बोला है वही लिखेंगे आप, तो मार्क्स कटने का सवाल नहीं है। तो मार्क्स मिल गया, इसलिए मैं सिलेक्टेड हूँ, ठीक है ना। हर जगह पे देखो थोड़ा सा दिमाग लगाया मैंने, ठीक है ना, क्या ऑप्शनल लूँ, इंटरव्यू को कैसे करें, है ना। तो ये तो हो गया आपका एसे एंड ऑप्शनल्स, राइट। नेक्स्ट आपका आता है GS 1, 2, 3, 4। देखो GS 1, 2, 3, 1 में क्या है बताओ आप लोग। GS 1 में आपका हिस्ट्री है ना, ज्योग्राफी है। GS 2 में क्या है, GS 2 पॉलिटी है ना, IR वगैरह है ना, गवर्नेंस वगैरह है। GS 3 में आपका इकोनॉमिक्स है, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह है ना, और GS 4 में आपका एथिक्स है। देखो एक चीज़ समझ लेना, है ना, एकदम दिल में दिमाग में ड्रिल करके घुसा लेना, ठीक है। GS 1, 2, 3 अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, पढ़ लेंगे तो पास नहीं हो सकते। क्या बोला, GS 1, 2, 3 अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो यूपीएससी में आप फेल हो जाएंगे। और अगर पढ़ लिया और बोला कि सर हम इसी में करेंगे सब कुछ, पास नहीं करा सकता। GS 1, 2, 3 GS 1, 2, 3 में जो मर्जी कर लो आप, अमर्त्य सेन को बिठा दो, बोला कि लिख इकोनॉमिक्स, यूपीएससी मार्क्स ही नहीं देगा। उसको क्या पता अमर्त्य सेन आंसर लिख रहा है, वो मार्क्स देगा घुमा फिरा के 250 में से। ये जो इकोनॉमिक्स वाला जो पेपर है, थर्ड पेपर, वो देखना अमर्त्य सेन को भी मिलेगा 100, 105, 95, 90, वो मार्क्स देते ही नहीं है। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस चक्कर में मत रहना कि GS 1, 2, 3 में कुछ करेंगे, ऐसा कुछ धमाल मचाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि बस मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, 250 में मैं 140-50 ले आऊँगा या ले आऊँगी, एक एक पेपर में 450 आ जाएगा,
750 में से नहीं आएगा। GS 1 to 3 में 100 के एवरेज में, मतलब 300, 305, 310, 320, कई बार तो GS 3 में मैंने देखा है कि 85, 75 में भी रैंक 3 मैंने देखा है, रैंक थर्ड, उसको GS थर्ड पेपर में ही गॉट 75, रैंक थर्ड। तो कुछ भी कर लो भाई, GS 1 to 3 में आपका एवरेज में 300, 310, 20 रहेगा। एक आधा एक्सेप्शन होगा, किसी में 130 ले आया किसी एक पेपर में, दूसरे पेपर में फिर वो 90 आ जाएगा, घुमा फिरा के एवरेज वही आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, प्रिपरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि GS 1 to 3 के पीछे पड़ गया, पूरा का पूरा समय आपने उसी में दे दिया और लास्ट में आपने देखा कि उसमें से तो आपका मार्क्स वही 100 मतलब 310, 320 आ रहा है, ठीक है ना। आप लोग देखना इस बार का जो पिछले साल के जो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उन लोगों का जो GS 1 to 3 का मार्क्स देखना आप, ठीक है ना। लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, तो पढ़ना है लेकिन एक्सपेक्ट नहीं करना है कि इसमें से बहुत कुछ आएगा। पढ़ना है, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाएगा, बट इसके वजह से पास नहीं हो सकते। राइट। अब बचा आपके पास एक पेपर, दैट इज एथिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स है। इस पेपर में 140, 45 भी संभव है ना। इस पेपर का जो ब्यूटी है वो ये है कि एथिक्स के पेपर में ना वो लोग अगेन, क्योंकि ये पेपर जो है ना नॉलेज बेस्ड नहीं है, आपको एथिक्स कितना आता है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कितना आप अप्लाई कर पा रहे हैं नॉलेज को। जो आपका जो केस स्टडीज़ है वो बेसिकली एप्लीकेशन है, जो भी आता है वो केस स्टडीज़ 120 मार्क का आता है एथिक्स में, है ना, और 130 आपका क्वेश्चन आंसर। केस स्टडीज़ अगर आपका सही हो गया तो आपको एकदम फ्रीली वो लोग मार्क्स देंगे। तो आपको सब्जेक्ट्स को, एथिक्स को थोड़ा सा समझना है, समझ के और आपको एप्लीकेशन बेस्ड आंसर लिखना है। सेकंड एथिक्स का जो सेकंड पार्ट है जो केस स्टडीज़ है, राइट, इस पेपर में 140 के करीब आ सकता है। तो कुल मिला के देखो कितना मार्क्स आपका हो रहा है। GS 1 to 3 में हम लोग 300 लेके चलते हैं एवरेज, 5-10 मार्क ऊपर नीचे होगा, 300 लेके चलते हैं। एथिक्स में हम 140 लेते हैं, कितना हो गया, 440 हो गया। और आपका जो ऑप्शनल है उसमें हम लोग 300 लेते हैं, 310-20 आएगा बट 300 लेके चलते हैं, कितना हो गया, कितना, 740। और आपका जो एसे पेपर है उसमें 125 लेते हैं, तो कितना हो गया, 865। अब 865 में देखना, यू आर थ्रू, मतलब आप इंटरव्यू तक तो पहुंच ही जाएंगे, है ना। उसके बाद जो भी इंटरव्यू में मार्क्स मिलेगा वो उसमें ऐड होगा और ऐड होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है, क्लियर है। तो हमें किस तरीके से तैयारी करना है एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट पेपर आपका इंडियन लैंग्वेज नहीं पढ़ना है, सेकेंड पेपर इंग्लिश नहीं पढ़ना है, दो गया। ऐसे पढ़ना नहीं है, आपका जो एंटायर सिलेबस है उसको ठीक से पढ़ना है, अलग से कोई किताब नहीं पढ़ना है, और लिखना है और सोचना है कि कितने सारे एंगल्स में आप लिख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा। व्हेन आई रोट एन एसे इन UPSC, द टॉपिक वाज एटीट्यूड मेक्स हैबिट, हैबिट मेक्स कैरेक्टर एंड कैरेक्टर मेक्स ए मैन। UPSC का टॉपिक। उस समय एक ही ऐसे लिखना होता था, वन ऐसे, 3 घंटा, 3000 शब्द। अब उस समय तो एथिक्स वेथिक्स था नहीं। अब मुझे उस समय पता ही नहीं था कि एटीट्यूड होता क्या है, हैबिट होता क्या है, कैरेक्टर होता क्या है, और ये सब बोल क्या रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं आपको थोड़ा सा शेयर करता हूँ, मेरे कुछ सीनियर्स थे उनसे मैंने बात किया था कि हाउ टू सिलेक्ट एन एसे। तो लोगों ने मुझे बताया कि जिस टॉपिक में तुमको नहीं आता है बहुत कुछ, उसको लिखना है। मतलब मजाक हो रहा है ये जिसमें आता है उसमें उसको नहीं लिखना है। मैं समझ नहीं पाया इसका मतलब क्या। और इसका मतलब ये है, देखो जो मैं जब ऐसे लिखा था उस समय UPSC में जो टॉपिक था पंचायती राज अगेंस्ट क्वेश्चन, ऐसे का टॉपिक था। पंचायती राज के ऊपर मैं तो 30,000 शब्द लिख सकता हूँ, क्योंकि पढ़ते ना हम लोग, तो मैंने लिखा नहीं, मतलब हटा उसको। फिर एक था
अर्बनाइजेशन के ऊपर कोई टॉपिक था, नहीं लिखा, जबकि सोशोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, उसको भी हटा दिया मैंने। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जिस टॉपिक में आपके पास ज़्यादा नॉलेज है ना, उसमें आप क्रिएटिव नहीं हो सकते। जब आप क्रिएटिव नहीं हो सकते तो ऐसे नहीं रहता, वो बन जाता है जीएस का क्वेश्चन, राइट? फिर आपका मार्क्स नहीं मिलता है। मेरे साथ जब यूपीएससी हॉल से, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम यूपीएससी हॉल में ही दिया था, प्रीलिम्स मेन सब कुछ, जब यूपीएससी हॉल से बाहर निकल रहा था तो मेरे साथ बगल में एक मेरा एक फ्रेंड था, आशीष नाम था, वो ऑल इंडिया जो एम्स जो है ना, मेडिकल जो है डॉक्टर थे वहाँ के। तो मैंने उससे पूछा भाई तुमने क्या लिखा है, वो हेल्थ के ऊपर कोई टॉपिक था, उसने बोला कि मैंने इसके ऊपर लिखा है। उसी के बगल में एक लड़का था, शौकत नाम है, वो कश्मीर का था। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने क्या लिखा है, बोला अर्बनाइजेशन। और मेरे मुंह से निकल गया कि तुम दोनों को ना मार्क्स नहीं मिलेगा। वो लोग सुन के निकाल दिया, बाहर गए, भूल गए, रिज़ल्ट आया, दोनों फेल। मेरा हो गया इंटरव्यू, ये दोनों फेल हो गए। उस समय ना जैसे अभी लास्ट में मार्क्स आता है, उस समय क्या था कि बीच में ही वो मार्क्स दे देते थे जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उन लोगों के पास मार्कशीट आ गया। तो एक दिन फ़ोन किया दोनों ने कि दादा तुम आ जाओ। मैंने बोला क्यों? बोला राजेंद्र नगर आ जाओ। मैंने बोला क्यों, मारोगे क्या? बोला नहीं मारेंगे, तुम आ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। तो मैं पहुंचा राजेंद्र नगर, मेरा घर दिल्ली में ही है, दूर है थोड़ा सा राजेंद्र नगर मेरे घर से। तो मैं गया वहाँ, तो बोला कि दादा तुमने बताया था कि तुम दोनों का मार्क्स नहीं मिलेगा ऐसे में, और सच में नहीं मिला है। तो मैंने बोला मैंने बोला था क्या? बोला हाँ तुमने बोला था, मैं भूल ही गया, बोला भी था। मैंने बोला कितने आए हैं? एक का आया 65 और दूसरे का 75, 300 में से। नहीं 300 था क्या उस समय? 300 नहीं था, 200 मार्क्स में से। तो मैंने बोला कि मैंने अगर बोला है तो एक ही रीज़न हो सकता है कि भाई तुम दोनों इस ऐसे में क्रिएटिव नहीं बने होंगे। क्योंकि जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का जो डॉक्टर है वो हेल्थ इशू पे लिखेगा तो ज़रा सोचो वो क्या नहीं लिखेगा। वो तो डिजीज़ साथ में प्रिस्क्रिप्शन भी लिख के आ जाएगा कि इसमें ये दवाई लो, उसमें वो दवाई लो, नॉलेज है ना। और मेरा जैसा कोई गरीब इंसान कोई लिखेगा मेरी हेल्थ के ऊपर तो क्या लिखेगा? थोड़ा इधर से लिया, थोड़ा उधर से लिया, आता नहीं है ना, कुछ खाली है ना, ये खाली दोनों खाली, तो कहाँ से नॉलेज लाएगा? सोच के लाएगा, अच्छा ये लिख दो, अच्छा वो लिखो, ये लिखो। और यूपीएससी को वही चाहिए, क्रिएटिव चाहिए ना। इन लोगों को मार्क्स नहीं मिला। तो मेरा जो टॉपिक था हैबिट मेक्स कैरेक्टर, एटीट्यूड मेक्स हैबिट मेक्स कैरेक्टर, कैरेक्टर मेक्स ए मैन। एटीट्यूड पता नहीं, हैबिट पता नहीं, कैरेक्टर पता नहीं। मैं बैठा हूँ और मैं बगल में देख रहा हूँ सब लिख रहे हैं, मैं चुपचाप बैठा हूँ, मैं पंखा घूम रहा है, मैं देख रहा हूँ यूपीएससी हॉल में। फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो लिखते हैं कुछ। बचपन में ना हम लोगों ने मैं जब कुछ किताबें मैंने पढ़ा था, तो इट वाज अ स्मॉल बुक ऑन रामाकृष्ण परमहंस, यू नो, राइट? इट वाज लाइक दिस, रामाकृष्ण परमहंस है ना, যখন রামকৃষ্ণ পরমহংস স্কুলে মানে বেশি পড়াশোনা তো করেননি, টোল ছিল তখন। টোল মানে ওই গুরুজির কাছে গিয়ে পড়তে হবে। একদম ছোটোবেলায় একদিন এসছে বাড়িতে, এসে বলছে, তখন নাম ছিল গদাধর, এসে বলছে যে বাবা আমি না কালকে থেকে স্কুল যাব না। তো রামকৃষ্ণ পরমহংসের বাবা বলছেন যে কেন? তো বলে না ওখানে সব উল্টোপাল্টা শেখাচ্ছেন। তো বাবা বললেন যে কী শেখাচ্ছেন? বলে ওরা যোগ বিয়োগ শেখাচ্ছেন। বলে কি? বলে বললো তোমার কাছে 3টে খেলনা আছে, একটা যদি নষ্ট হয়ে যায় কটা থাকবে? তো বাবা বলছেন যে কটা তুমি বলেছো? বলছে আমি তো বললাম 3টে। বলে গুরুজি কী বলেছে? বলছে গুরুজি বলছেন 2টো। তো তখন রামকৃষ্ণ বাবা মানে গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের বাবা বলছেন যে আরে তুমি ভুল, গুরুজি তো ঠিক। এটা আমি, দিস ইজ হোয়াট আই এম রাইটিং ইন ইংলিশ, রাইট? আই হ্যাভ স্টার্টেড রাইটিং অল দিস থিং, আই এম রাইটিং দেয়ার অন দিস পেপার। তো বাবা বলছে আরে ইউ আর রং। বলে নো আই এম রাইট, স্মল রামাকৃষ্ণ, রাইট? তো বাবা বলছে ঠিক আছে নিয়ে এসো 3টে খেলনা। নিয়ে এসছে। তো বাবা কী হলো 3টে রাখলেন, একটা পেছনে সরিয়ে নিলেন। বলছেন হাউ মেনি আর দেয়ার? বলে 3। বলে রে 2টো। বলে নো। देन रामकृष्ण सेज वाई आर यू कॉलिंग इट कि डिस्ट्रॉय हो गया है, नष्ट हो गया है? इट इज ओनली डिस्प्लेसमेंट, ओनली डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से वहाँ चला गया, पीछे चला गया, या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला गया। प्योर फिजिक्स।
Energy cannot be created, or matter cannot be created, cannot be destroyed, can only be converted. Okay, this is what I wrote, and then I said this is called attitude. If you know that you are here in this world just to convert a certain thing to another form, immediately you'll be humbled. जैसा होता नहीं है कि भाई मैं तो बहुत बड़ा अफसर हूँ, मैं तो तुम्हारा बिगाड़ देंगे, तुमको बना देंगे. ऐसा माइंड में कब आता है? जब अपने आप को आप ये समझने लगता है कि मैं बहुत कुछ हूँ, कि तुम्हारा बर्बाद कर देंगे, है ना, तुमको कुछ बना देंगे. ये एटीट्यूड खराब कब होता है? जब इंसान ऐसे सोचने लगता है. जब इंसान ये सोचता है कि भाई मैं तो इसको चेंज नहीं कर सकता, मतलब ख़राब नहीं कर सकता, कुछ बना भी नहीं सकता, मैं सिर्फ ऑल्टर कर सकता हूँ, तो इमीडिएटली इंसान हम्बल हो जाता है. देन आई स्टार्टेड, दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड, एंड देन आई स्टार्टेड अनफोल्डिंग इट मैनेजमेंट के एंगल से, डिफरेंट एंगल से, एंड आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन एसे. गॉट इट? So this is what is important in essay writing, that you have to give them an impression that you can, unfold different dimensions of the same thing. This is not purely a knowledge-based aspects. Whatever knowledge you have, you just use it in your answer writing, particularly essay, you'll get very good marks, right? So this is your essay. तो इतना हम तो ला ही सकते हैं. 300 GS 1 to 3 में, 130, 35, 40 के आसपास एथिक्स में, 125 के आसपास एसे में, एंड अराउंड 300 ऑप्शनल्स में. इतना अगर ले आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा. और इंटरव्यू में जैसे मैंने बताया कि अगर आप गाली गलौज नहीं करोगे, सीधा जाके चुपचाप बैठ के आ जाओगे, गुस्सा नहीं दिलाना है, गाली गलौज नहीं करना है, तो 40% कहीं नहीं जा रहा है. ये लिखा है यूपीएससी के उसमें. डीपी अग्रवाल यूपीएससी के चेयरमैन ने खुद बोला एकेडमी में आकर लवासना में. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना है. उनको गुस्सा नहीं दिलाना है ना, गाली गलौज नहीं करना, उल्टा सीधा नहीं बोलना. उनको लगना चाहिए कि ठीक है, ऑनेस्ट है ये इंसान, तो ये आपका आ जाएगा. ठीक है ना? ये तो हो गया आपका मेंस. एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू मेंस? नो क्वेश्चन? देखो, आंसर राइटिंग इज मस्ट. आपका जो प्रिपरेशन है ना, अगर आप देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. आप जब भी, पहले तो आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा. बिना नॉलेज का तो कुछ होने वाला है नहीं, है ना. बिना नॉलेज का आप कुछ लिख ही नहीं पाएंगे. तो फर्स्ट स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन इज़ नॉलेज गैदरिंग. आपको नॉलेज गैदर करना है. उसके बाद आपको करना क्या है कि आंसर राइटिंग में फोकस करना है. जैसे यूपीएससी का मान लो GS 1 2 3 4 का अगर मैं बात करूँ, तो एक क्वेश्चन में मान लो 10 मार्कर का जो क्वेश्चन है, उसमें आपको 150 वर्ड में लिखना है और 7.5 मिनट्स आपको मिलता है. तो प्लीज़ भाई 150 वर्ड में ही लिखने का कोशिश करना. मतलब भाई आगे पीछे 2 पेज और 7.5 मिनट में ही लिखने का कोशिश करना. और मैं ये चीज़ आपको बता दूं, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो लोग 6 मिनट, 6.5 मिनट, 5.5 मिनट में आंसर को कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है ना? तो आपको लिखना है. ये मत करना कभी कि क्वेश्चन लिया और बोला कि चलो ठीक है 1 घंटे में लिखते हैं. 1 घंटे में लिखने का हैबिट अभी से मत बनाना. आप नॉलेज गेन करो, उसके बाद आप लिखना जब भी शुरू करोगे, बस वही मतलब 7.5 मिनट में आपको कवर करना है ईच एंड एवरी क्वेश्चन. तो 20 क्वेश्चन टोटल मान लो GS 1 to 3 में है, तो 20 क्वेश्चन आपको लिखते रहना है, मतलब लिखना है विद इन टाइम फ्रेम. 7.5 मिनट में आपको कवर करना पड़ेगा. वो अभी से करना पड़ेगा. शुरू में आपको स्ट्रक्चर में ध्यान देना है. मैं आपको बहुत सिंपल सा एक चीज़ बताऊंगा. जैसे मान लो एक क्वेश्चन 10 मार्कर का है, एक इंट्रोडक्शन, ठीक है, एक कंक्लूजन. और देखना 10 मार्कर के क्वेश्चन में 2 पार्ट रहता है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ये नॉर्मली. और जो 15 मार्कर का क्वेश्चन है उसमें 3 पार्ट रहता है क्वेश्चन का नॉर्मली. इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, एक फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट. एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ भूलना नहीं. कुछ भी पढ़ो आप, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी वगैरह कुछ भी पढ़ो, व्हाट इज पे ध्यान देना. व्हाट इज, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, इफ यू नो व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, तो 50% सिलेक्शन हो गया आपका. मैं 50% बोल रहा हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम है ना, व्हाट इज पे है ना. वो जो WH है ना, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर,
इस पे फोकस करना, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए यूपीएससी क्रैक करने के लिए। आपको स्कॉलर नहीं बनना है, पीएचडी नहीं करना है, सिर्फ व्हाट इज। जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि बताओ व्हाट इज एथिक्स, यू शुड बी 100% clear in your mind कि whatever I am saying, this is exactly what is ethics, what is attitude, what is emotional nature, what is। अगर what is clear नहीं है तो आगे बढ़ना ही नहीं है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना है। आपका सिलेक्शन what is अगर आपका ठीक हो गया तो 50% आपका काम हो गया। क्यों? क्योंकि जितने भी बच्चे वहाँ पे जाते हैं मेंस सीखने के लिए, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जिनको पता नहीं है उनको पता ही नहीं होता व्हाट इज़ क्या, वो लिखते रहते हैं इधर से उधर, वो जो पूछा ही नहीं है, जो है ही नहीं, वो सब लिखते हैं और उनका आंसर वो चेक ही नहीं होता ठीक से। आप व्हाट इज़ पे फोकस करना सबसे पहले, तो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में व्हाट इज़ इंटरव्यू में भी काम आएगा वो, है ना, क्योंकि व्हाट इज़ ऐसे क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस आएगा ना। अभी जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स चल रहे हैं आपके यहाँ पे क्लास में? पॉलिटी, हिस्ट्री। तो जैसे मान लो पॉलिटी में जैसे मैंने रूल ऑफ लॉ मैंने बताया, है ना। मान लो सॉवरेनिटी, व्हाट इज सॉवरेनिटी, व्हाट इज इक्वालिटी, एंड यू शुड बी बैंग ऑन टारगेट। भाई कुछ भी हो जाए, मेरा आंसर 1 सेंटीमीटर भी बदलेगा नहीं, आंसर वही है जो मैंने बोला है। अगर ये कॉन्फिडेंस है तो 50% हो गया, 50% सिलेक्शन हो गया। मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज अगर क्लियर है तो आप देखना, क्योंकि जैसे व्हाट इज होगा ना तो क्या होगा, जैसे क्वेश्चन आएगा तो व्हाट इज आप पहले लिखेंगे, उसके बाद 4 पॉइंट इधर 4 पॉइंट इधर, 5 और 5 पॉइंट। नॉर्मली यूपीएससी आप ये समझ लो कि 5-5 पॉइंट्स का खेल है। फर्स्ट जो 10 मार्कर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें 2 सेक्शंस होते हैं, इधर 5 पॉइंट इधर 5 पॉइंट। 15 मार्कर है तो 5 पॉइंट 5 पॉइंट 5 पॉइंट 15। तो अगर 5 पॉइंट्स अगर आप जनरेट कर सकते हैं ऑन योर ओन तो आपका सिलेक्शन एकदम सर्टेन 99.99% सही है, हो जाएगा आपका सिलेक्शन। और कोशिश ये करना है कि सिलेबस को ना धीरे धीरे कम करते रहना है, बढ़ाना नहीं है, अनमैनेजेबल हो जाएगा नहीं तो। कम करते कैसे होगा कम? जैसे मान लो जैसे अभी आपको कुछ नहीं पता तो ऑब्वियसली रीड अ लॉट, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास नॉलेज है तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट स्टेज कि भाई नाउ आई हैव गॉट द नॉलेज, नाउ आई एम गोइंग टू रिवाइज ओनली दोज थिंग्स विच आर डिफिकल्ट फॉर मी फॉर राइट नाउ, है ना। आई हैव टू स्टडी अगेन। तो जिसमें आपका होल्ड है, कमांड है, उसको एलिमिनेट करना है, क्योंकि आपको पता है जिसमें कमांड नहीं है उस पर फोकस करना है। धीरे 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 आपका जो नॉलेज है उसको बढ़ाना है और रिवीजन का जो टाइम है उसको बढ़ाना है। वो तभी पॉसिबल होगा जब आप एलिमिनेट कर पाएंगे। देखो 3 चीज़ें ध्यान रखना। एक तो ये है यू डू नॉट नो दैट यू डू नॉट नो, पहला स्टेज। मेरे आने से पहले हो सकता है कि आप उस फेज में थे कि यू डू नॉट नो दैट यू डू नॉट नो। अब मैं आया तो अब क्या हुआ, आई नो दैट आई डिड नॉट नो। मेरे क्लास के बाद आई नो दैट आई डिड नॉट नो कन्वर्ट हुआ ना। थर्ड स्टेज क्या होगा, आई नो दैट आई नो। जैसे ही आप थर्ड स्टेज में पहुंचेंगे, आई नो दैट आई नो, यू आर थ्रू। होता क्या है कि फर्स्ट स्टेज में ही बच्चे रह जाते हैं कि आई डू नॉट नो दैट आई डू नॉट नो, पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं, जो भी किताब मार्केट में मिला उठा लिया, ये पढ़ना है, इसमें से आएगा उसमें से आएगा, कुछ नहीं आएगा उसमें से। आपको अपना जो नॉलेज, इसको हम इनसाइड आउट एग्जामिनेशन बोलते हैं, आपके अंदर का जो नॉलेज है ना उसको बाहर लाना है, उसको बताना है, रादर देन आउटसाइड इन। जैसे अभी तक जो स्कूल कॉलेज में हमने पढ़ा है दैट इज आउटसाइड इन एग्जाम। क्वेश्चन आया, किस किताब में लिखा हुआ है नॉलेज है, उसमें से कृष्ण परमहंस, आई रोट इट देयर इन यूपीएससी। चलो 15 मिनट्स में प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं। प्रीलिम्स में देखो सीसेट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना। सीसेट में आपका मेनली 3 पार्ट है, एक तो रीजनिंग है, एक आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी वगैरह है ना, और तीसरा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन।
है ना। इसमें आपको सीरियसली लेना है, 33% लाना है। बहुत बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर ये लोग बना रहे हैं, बहुत दुष्ट किस्म के लोग हैं यूपीएससी वाले। कहते हैं ऑप्शन वो क्वालिफाइंग क्वेश्चन पेपर ऐसे बनाते हैं कि 33% लाना भी मुश्किल हो जाता है। तो अब देख लो, अगर आपके पास कॉम्प्रिहेंशन को टैकल करने का अगर एबिलिटी है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि उसको पढ़ के समझना है, समझ के लिखना है, कॉम्प्रिहेंशन वाला। और रीजनिंग तो मोरल सबका समान ही होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा रीजनिंग। न्यूमेरिकल एबिलिटी थोड़ा सा टफ है भाई, इसके ऊपर आपको फोकस करना है, 33% लाना ही है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि अदरवाइज आपका GS1 का पेपर जो ना वो चेक ही नहीं करेंगे वो लोग, राइट। तो आपको ऑप्शन CSAT को तैयार करके जाना है, इनफ प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट है, मतलब बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ GS1 में आपको पता ही है क्या क्या है। बेसिकली पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स मस्ट है, बिना करंट अफेयर्स यूपीएससी सिलेक्शन नहीं होगा। करंट अफेयर्स के लिए मेनली एक तो न्यूज़पेपर रीडिंग, हिंदू न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है ना। PIB पता है आप लोगों को, PIB का नोट्स आपको पढ़ना है। और डाउन टू अर्थ सुना है आपने, एक मैगज़ीन है डाउन टू अर्थ, वो आपको फॉलो करना है। ये तो 3 है ही। और साइंस एंड टेक के लिए अगर आप देखेंगे तो एक तो शंकर IAS का एक बुक है दैट यू कैन डू, या क्या ना PFM करके कुछ है, उसका भी एक है दैट यू कैन गो, है ना। और एक मैगज़ीन, कोई भी एक मैगज़ीन, स्टैंडर्ड मैगज़ीन आपको फॉलो करना है, सीरियसली फॉलो करना है कोई एक मैगज़ीन, ठीक है ना। तो न्यूज़पेपर, मैगज़ीन एंड PIB, डाउन टू अर्थ, ये सब पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, इतना ही पढ़ना आपको, रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है। और बाकी जो पेपर्स हैं आपका, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह है, उसको आपको पढ़ना है। इस तरीके से पढ़ना है कि कोई भी क्वेश्चन आए उसमें से यू आर इन द पोजिशन टू टैकल दोस्त। एक ही किताब पढ़ना है। जैसे मान लो अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं आप, तो इकोनॉमिक्स का आपका एक रमेश सिंह मार्केट में है, बट एक उससे भी बेटर बुक मार्केट में है, दैट इज़ नितिन सिंघानिया, स्टूडेंट फ्रेंडली बुक है, दैट यू कैन गो फॉर, ठीक है ना। पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत है ही, है ना, बाकी क्लास वगैरह तो हो ही रहा है आप लोगों का। हिस्ट्री के लिए आप लोग देख लो, एक तो स्पेक्ट्रम का बुक है ना। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उसी को एक ही किताब को बार बार पढ़ना है आपको, ठीक है ना। और क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप यहाँ पता नहीं मिलेगा, यानी दिल्ली से आप लोग एक काम कर सकते हैं, जो कोचिंग सेंटर जो लोग जैसे वाजीराम दृष्टि वगैरह का जो टेस्ट सीरीज़ होता है, वो किसी फ़ोटोकॉपी शॉप से मंगा लेना। एडमिशन नहीं लेना है, पैसा खर्च नहीं करना है, वो 20 रुपये करके लेते हैं एक सेट का। तो जितने भी क्वेश्चंस सेट वो लोग मतलब बनाते हैं, वो आपको मिल जाएंगे यहीं बैठे बैठे, उसका आंसर्स भी लोग देते हैं, उसको आपको सॉल्व करके जाना है, इससे आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है। चलो और बताओ क्या क्वेश्चन है। दिस इज प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, टाइम भी नहीं है और कुछ बताने का, पूछो। बैठो बैठो बैठो। बहुत सारे डेटास हम जब पढ़ते हैं करंट अफेयर्स वगैरह, तो उसको कैसे आंसर्स में अप्लाई करें? देखो डेटास ना, डेटा तो आंसर राइटिंग में बैठो, आंसर राइटिंग में डेटा आप कब एग्ज़ाम देने जाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो अगर आप 2027 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो 2026 के बाद, मतलब वही जैसे मान लो इकोनॉमिक सर्वे आएगा और बजट है, या उस समय का जो भी डेटा है वो इम्पॉर्टेंट है। आपको बहुत ज़्यादा डेटा नहीं चाहिए, बट 2-3, जैसे मान लो इकोनॉमिक्स में आपका 20 टॉपिक है, हर टॉपिक से 2-2, 3-3 डेटा ना, उसका एक वो बना लो, एक शीट में लिख लो। जैसे पॉवर्टी आएगा तो ये 2 चीज़ें हम लिखेंगे, 2 या 3 डेटा। जैसे ही मेंस आएगा तो मेंस में वो 2 डेटा आपको वहाँ पे लिखना है, ये आपको करना पड़ेगा। और प्रीलिम्स के लिए तो आपको पता ही है, जैसे मैंने बोला कि वो तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, उस समय तो आपको सीरियसली पढ़ना ही है, ठीक है। और बताओ। सर आंसर राइटिंग बताया, तो आंसर राइटिंग अगर हमारे पास डेटा नहीं है या फिर ज़्यादा नॉलेज नहीं किसी एक पर्टिकुलर टाइप से, उस केस में अगर मैं 4 दिन डायग्राम वो यूज करूँ
और आंसर्स को ज़्यादा हाईलाइट नहीं हम्म। करूँ तो वो केस कैसे होगा? देखो, अगर आप डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन लिखना है और आपके पास डेटा नहीं है, स्टैटिस्टिक्स नहीं है, तो फिर इकोनॉमिक्स का आंसर नहीं होगा, है ना, फिर तो वो लिटरेचर का आंसर हो गया। अब अदर सब्जेक्ट्स के लिए अदर सब्जेक्ट्स मतलब, जैसे जैसे मान लो पॉलिटी का क्वेश्चन है, हाँ, तो उसमें जैसे मैंने बताया ना कि अगर आपके पास व्हाट इज़ क्लियर है तो आप आराम से लिख लेंगे, और डेटा जैसे केस स्टडीज़ वगैरह है, अगर वो आपके पास है तो आप कोट कर पाएंगे कि सच एंड सच केस वाज देयर, जिसमें ये वर्डिक्ट आया हुआ है। तो वो विद द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन, जैसे जैसे आप इवॉल्व होंगे ना, ऐसे पढ़ते रहेंगे तो नॉलेज धीरे धीरे आता रहेगा और आप डेटा को वहाँ पे लिख पाएंगे, ऑटोमेटिकली होगा वो, उसके लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप पढ़ते रहना है आपको, और कोशिश करना है कि मौका मिलते ही डेटा लिखना है। हाँ, एनी क्वेश्चन? Sir, whenever I'm studying any topic, sir, directly I should switch to the PYQ questions to see that which are important, or first in detail I need to go through the topic. I think the first thing you can do is that you can go through the PYQ just to know that what kind of questions they are asking, है ना, and in which direction you should study. Once you have an idea that these are the questions which have been asked in the past, and this is this is how the UPSC is framing the questions, then it will be better for you to direct your study. Okay, in the direction I should study. In the very beginning, I won't go through the detail. No, the detail is not important, but you need to know the type of questions they are asking, so that you can guide your own self for your studies, isn't it? Yes. Sir, geography के लिए कौन सी book पढ़ना है? बैठ, ज्योग्राफी का तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है ये बताना कि कौन से बुक्स हम लोग फॉलो करें। मार्केट में एज सच कोई बुक्स नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी के लिए एक तो एनसीईआरटी बोलते हैं, दैट इज़ मस्ट। एक गो ची लियोंग का एक बुक है, अगर आपको पता हो तो, गो ची लियोंग सुना है? हाँ हाँ, गो ची लियोंग, जी सी लियोंग बोलते हैं, तो गो ची लियोंग भी है, तो वो एक बुक है दैट यू कैन डू। अदरवाइज मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैप पॉइंटिंग है ना, उसमें लिए एक काम आप ज्योग्राफी में कर सकते हैं कि जो कुछ भी न्यूज़पेपर में आता है ना, उसको ज्योग्राफी के मैप के थ्रू पढ़ने का। जैसे मान लो सपोजिंग बार्सिलोना या रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब है, वो कहाँ है, किस स्टेट का है, किस कंट्री का है, मैप में जाके अगर आप लोकेट करेंगे तो आपके स्पोर्ट्स के साथ साथ ज्योग्राफी का पोर्शन भी क्लियर होगा। और हर दिन ज्योग्राफी का जो मैप है ना, उसको लेके 10-15 मिनट आप दे सकते हैं। जैसे फिजिकल जो ज्योग्राफी है, टॉप टू बॉटम, नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट, अब देखते रहना है कि कौन सा रिवर टॉप में है, उसके नीचे कौन सा रिवर है, फिर कौन सा रिवर है, फिर कौन सा क्या माउंटेन्स का क्या रेंज है, किस तरीके से। एवरी डे यू विल 10 to 15, डोंट रिमेंबर एनीथिंग, जस्ट सी द मैप, and that map will be set in your mind after 3-4 months, and then geography will be very very easy for you to handle, है ना। और whatever current affairs you read, try to write it there in your map, instead of writing in loose shades, write it in the map itself. Say for example something has happened in Bengal, Siliguri. Now you have to go to the map exactly, and you have to point out this Siliguri area, and then you have to write it there, so that in future if there is a question from geography angle, you'll be able to cover it because you have used map, and that will help you in memorizing the things as well. हो सकता है कि आपके दिमाग से वो चीज़ निकल जाए, बट माइंड में है कि मैंने मैप में ना राइट हैंड साइड में लिखा था। जैसे मान लो नक्सलबाड़ी एक क्वेश्चन है, नक्सलबाड़ी यू नो, है ना। आपने मैप में लिखा है, मैप के थ्रू किया है, 4 ऑप्शंस मैं देता हूँ। एक ऑप्शन ये है, नक्सलबाड़ी किधर है, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान। तो आप तो वैसे भूल गए बंगाल है या बिहार, सपोजिंग भूल गए, लेकिन आपको इतना पता है कि मैप में ना मैंने दाहिने तरफ कुछ लिखा था, नक्सलबाड़ी, और जम्मू कश्मीर ऊपर है, तमिलनाडु नीचे है, राजस्थान इधर है, तो तीनों तो है ही नहीं, तो ये चौथा ही होगा, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, कुछ भी हो, दाहिने तरफ ही होगा। तो दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंट गेसिंग। आपका इंटेलिजेंट गेस तभी काम करेगा जब आप एक स्ट्रक्चर में पढ़ाई करेंगे। अगर ये चीज़ आप वैसे लिखेंगे कागज़ में कि भाई नक्सलबाड़ी इज़ इन वेस्ट बंगाल सपोज,
आप भूल गए तो मेमोरी साथ नहीं देगा हॉल में, तो भूल गए तो भूल ही गए, फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये है किधर, तमिलनाडु में है, जम्मू एंड कश्मीर है, क्योंकि पढ़ा तो है ये तो ठीक है, लेकिन है किधर, लेकिन आपने मैप यूज़ किया है ना, इस वजह से आपका वो मेमोरी काम कर जाएगा और आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, एनीथिंग एल्स? So regarding reading newspaper, takes a lot of time for each and every part of it. So is there any time? Yes. Initially, see, you cannot help it. Initially, a lot of time will be wasted in reading newspapers, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या नहीं है, क्या पढ़ना है वो तो पता ही नहीं है, क्या नहीं पढ़ना है वो भी नहीं पता है। इस चक्कर में 4 घंटा 5 घंटा चला जाता है ना। हाँ, वो होगा। फिर धीरे, इसलिए मैं कह रहा था, फिर धीरे धीरे क्या होगा ना, अगर आप सिलेबस को ठीक से पढ़ लेंगे एक बार, सिलेबस को याद कर लेंगे और क्वेश्चंस अगर आप देख लेंगे एक बार ठीक से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि पढ़ना नहीं, क्या नहीं पढ़ना। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं आएगा, आप छोड़ दो, कौन नेता क्या बोल रहा है, कहाँ पे क्या बोल रहा है, मोदी क्या बोल रहा है, ममता बनर्जी क्या बोल रहे हैं, रहने दो, है ना। ओपिनियन नहीं आएगा, ओपिनियन, जैसे अमृता सेन ने बोला कि ऐसा ऐसा ओपिनियन है, तो ओपिनियन वगैरह नहीं आएगा। यूपीएससी में ओपिनियन का कोई मतलब नहीं है, चाहे ओपिनियन किसी का भी हो, वो नहीं पूछेंगे। पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं पूछते हैं वो लोग, ठीक है ना। सेंसेशनल न्यूज़ नहीं पूछेंगे। सेंसेशनल मतलब रेप हो गया, मर्डर हो गया, कुछ ऐसा हो गया, मिस यूनिवर्स, सेंसेशनल सबको पता है दुनिया में, वो सब नहीं, यूपीएससी वाले नहीं पूछेंगे, पढ़ना ही नहीं है आपको। स्पोर्ट्स का न्यूज़ में बहुत ज़्यादा वो लोग नहीं पूछते हैं। जो इश्यूज़ बेस्ड है, जैसे मान लो आरजीकर हॉस्पिटल में वो जो रेप, गैंग रेप वाला इशू है, वो रेप वेप नहीं पूछेंगे वो लोग। ये हो सकता है कि उसके बाद एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है बंगाल में, आपको बिल का पता है, एक्ट बना है ना, उस बिल के बारे में पूछेंगे, उस एक्ट के बारे में पूछेंगे, या इससे लिंक्ड को जो भी है, जैसे मान लो विशाखा गाइडलाइंस है ना, और सेक्सुअल हरासमेंट और वर्क प्लेस, इससे लिंक्ड जो एक्ट है उसके बारे में, ये सब पूछेंगे। तो आपको उसमें जाना है, इधर ये सब नहीं पढ़ना है कि हाउ इट हैपेंड, है ना, व्हाट हैपेंड, व्हाट द पीपल आर सेइंग, ये सब नहीं पढ़ना है। तो जब आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएगा ना, तो आप देखना, अभी तो मेरे पास न्यूज़पेपर नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव टोल्ड यू, तो बहुत ईजी हो जाएगा ये आइडेंटिफाई करना कि ये सब पढ़ना ही नहीं है, पूछेगा ही नहीं पूछेगा। ठीक है, क्लियर। आप धीरे धीरे सिलेबस को ठीक से आप देखो, और यूपीएससी के जो क्वेश्चंस पास्ट में पूछे गए हैं ना, वो सब क्वेश्चंस आप ठीक से आप एक बार देख लो, वो आपको गाइड कर देगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? टाइम हो गया है, हाँ पूछो। Sir, my name is Sanchita Rai. I am aspiring to become officer in foreign service. So my question to you is, from your experience, personal experience, what patterns that you have noticed in the selected candidates that sets them apart from other candidates? देखो, the question is that what kind of qualities a selected candidate generally have, which sets them apart from the rest of the candidates. I think the mindset. The mindset is very important, that if you have got a mindset in which you are basically very, very serious about your task, or let me put it this way, success does not always go to the stronger or the faster person, but the person who wins the race is the person who thinks he or she can. A person who thinks he or she can will eventually become successful, rather than a person who is stronger and faster. So if you have got a mindset that I am going to crack this examination, so you'll be very serious about everything that you do, and ultimately you'll be successful. क्योंकि जितने भी बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं, जैसे मान लो 12 लाख के आसपास बच्चे इस एग्ज़ाम को फॉर्म भरते हैं, उसमें से 5 लाख के आसपास मेरे ख्याल से एग्ज़ाम देते हैं। प्रीलिम्स का मैं बात कर रहा हूँ, 5 से 6 लाख से ज़्यादा तो देते नहीं हैं। उनमें से तो आप ये समझ लो कि कम से कम नहीं तो 4 लाख तो ऐसे हैं जो जाते हैं यूपीएससी देने के लिए, कि चलो जाके देखते हैं, दुर्गा पूजा टाइप, ये पंडाल घूम के आते हैं, वो पंडाल घूम के आते हैं, कुछ ऐसा ही है। 4 लाख के आसपास होते हैं मेरे ख्याल से। 40-50 हज़ार बच्चे होते हैं जो सीरियस होते हैं पूरे इंडिया में,
और वो लोग पेपर देते हैं और क्रैक करते हैं। मान लो उनमें से लगभग 15,000 के आसपास, 13-14-15,000 के आसपास मेंस लिखते हैं, और इनमें से कम नहीं तो 8,000 या 10,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो लोग पीटी मास्टर्स है। पीटी मास्टर मतलब प्रीलिम्स निकाल देंगे, मेंस नहीं निकलेगा क्योंकि मेंस के लिए पढ़ाई नहीं है। तो ये जो 15,000 बच्चे मेंस लिखते हैं उसमें से 10,000 तो ऐसे ही होते हैं कि पीटी मास्टर है, हर साल पीटी निकालेंगे, मेंस नहीं निकलेगा इनका, तो ये लोग भी कभी सिलेक्ट नहीं होते। वो 5,000 जो है ना, जो लोग बहुत सीरियस किस्म के हैं, जो लोग मेंस को भी कवर करते हैं, उनमें से 3,000 के आसपास बच्चों को इंटरव्यू में बुलाते हैं। उन 3,000 में से 600-700 बच्चे को सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि वो 15,000 के कैटेगरी में घुसना है, क्योंकि 15,000 के कैटेगरी में घुसने का मतलब प्रीलिम से मेंस में जाना है। और जैसे आप पहुंच गए, अगर मेंस आपके पास है तो वो 5,000, वो जो 15,000 से 3,000 जो बच्चे जो बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, उसमें आप चले जाएंगे, और उसमें से फिर आपको 600-700 जो भी बच्चे हैं उनमें, उसमें आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलो और बताओ, और एनी अदर क्वेश्चन? नो? चलो